Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School, क्लास 7th गणित अध्याय दूसरा भिन्न एवं दशमलव भिन्ना अते दशमलव। बेटा आज हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? भिन्न अते भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं या भिन्न किन्नू कहते हैं? इनू भिन्न नूं आपां बेटा देखो किद्दां लिखदे आ 1/4 2/3 7/6 सारे भिन्न हैगे ने। जिहड़ी भी रकम बेटा बटे विच लिखी होवे ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਿੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਭਿੰਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧ 'ਚੋਂ ਲਾਈਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, 1/2 ਭਾਗ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, 1/2 ਭਾਗ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 1/2 ਭਾਗ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1/2 ਭਾਗ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਬਾਕਸ। ਜਿਹੜਾ 1/2 ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਬਾਕਸ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਗਾ 1/2। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਭਿੰਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਚੀਜ਼ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਭਿੰਨ। ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਭਿੰਨ। ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਬਟੇ 'ਚ ਕਰਕੇ। 1/5 ਆ ਗਿਆ, 2/5 ਆ ਗਿਆ, 3/4 ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬੇਟਾ ਬਟੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਨਾ, 1 ਖਾਨਾ 2 ਅਤੇ 3। ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ, 1/3 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, 1/2 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ ਅਤੇ 1/3 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਬਟੇ 'ਚ ਰਕਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1/5 2/4 3/4 ਕੁਛ ਵੀ। ਭਿੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਟੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਅੰਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ? ਅੰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਬਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਅੰਸ਼। ਬਟੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਹਰ। ਬਟੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਹਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਭਿੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ, ਵਿਸ਼ਮ ਭਿੰਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਿੰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ? ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ। ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਅੰਸ਼। ਅੰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 3 ਅਤੇ ਹਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 6। ਅੰਸ਼ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿੱਧਰ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ, ਜਿੱਧਰ ਐਰੋ ਦਾ ਸਾਈਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੰਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਹਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ ਛੋਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ 3/6। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਅੰਸ਼? ਅੰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3। ਹਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 6। 6 ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ 3 ਦੇ ਨਾਲੋਂ, 3 ਦੇ ਨਾਲੋਂ 6 ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ 'ਚ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਵੱਡੀ ਆਏਗੀ। ਹੋਰ 2/3 ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਭਿੰਨ 'ਚ ਆਏਗਾ? ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ 'ਚ। 3/4 ਇਹ ਵੀ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ? ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਮ ਭਿੰਨ। ਵਿਸ਼ਮ ਭਿੰਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ। ਵਿਸ਼ਮ ਭਿੰਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 6/3, 6 ਵੱਡਾ 3 ਛੋਟਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਮ ਭਿੰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਿੰਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਿੰਨ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਣ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਿੰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
3 2 बटा 5 जो इदा का भिन्न लिखा होएगा इनू आपां की कहना है, मिश्रित भिन्न। 2 5 बटा 9 इदा का कुछ भी हो सकता है, इनू आपां की कहना बेटा, मिश्रित भिन्न। हुण जे मिश्रित भिन्न दिता होएगा बेटा उन्होंने आपां सॉल्व करके ਜਾਂ तो उचित भिन्न च आंसर आएगा ਜਾਂ तो विषम भिन्न च आएगा जो आप इनू सॉल्व करांगे। तो सॉल्व किद्दां करना है उन्होंने, जे मिश्रित भिन्न आएगा है तो उन्होंने सॉल्व किद्दां करना है वो आप देखांगे। जिवें देखो बेटा 3 1 बटा 2 दिता है, एग्जाम्पल मैं इत्थे कीती हुई है, तुसीं दोबारा देखो 3 1 बटा 2 दिता है। ए वाले नंबर नूं बेटा ए वाले नंबर ने की कराना है, मल्टीप्लाई। 3 2 दा 6 कितना आ गया 6, तो जोड़ा उपर वाला नंबर होएगा उहदे विच जमा कर देना। 6 विच 1 जमा की कितना आ गया 7, ये कितना भिन्न बन गया 7 बटा 2। हुण देखो उपर वाला वड्डा है थल्ले वाला छोटा है, अंश वड्डा है हर छोटा है, ये किहड़ा भिन्न सी, विषम भिन्न। अंश वड्डा है हर छोटा है, ये साडा को किहड़ा भिन्न सी, विषम भिन्न। इदां सॉल्व करना है, 3 2 नूं पहले 3 नाल गुणा करवाउणी है, जो आंसर आएगा जिवें 3 2 दा 6 उहदे विच 1 जमा कर देना जो उपर लिखा होएगा, जिहड़ा बेटा नंबर उपर लिखा होएगा वो तुसीं प्लस कर देना, कि आ गया 7 बटा 2। हुण देखो 9 1 बटा 2 इनू सॉल्व करांगे तो की आएगा, 2 नूं 9 नाल गुणा किया कितना आ गया 18, 18 विच 1 जमा किया 19, 19 बटा 2। नैक्सट देखो 2 नूं 3 नाल गुणा किया 6, 6 नूं 4 विच 6 विच 4 जमा की कितना आ गया 6 4 10, कितना आ गया 10 बटा 2। ये तो बेटा हो गया कि जो सानू मिश्रित भिन्न दिता होवे ते आपां उहनूं विषम भिन्न जां उचित भिन्न च किवें लैके आउणा है, ये पता लग गया सानू। बेटा हुण जे तुहानूं उचित भिन्न या विषम भिन्न दिता हो तो तुहानूं वो कहणगे कि तुसीं सानू विषम भिन्न दिता हो तो वो कहणगे कि मिश्रित भिन्न च आंसर कड्डो। फिर किवें करना है, 9 बटा 5 देखो विषम भिन्न सी, इहदा आपां मिश्रित भिन्न च लैके जाना है। मिश्रित भिन्न च बनाउण लई की करांगे, 5 वार उपर वाली टर्म अंदर 9, 5 दे टेबल ते 9 तो छोटी रकम की हुंदी बेटा 5, 5 1 ज़ा 5 आ गया, ठीक है। 9 चों 5 गए 4, बेटा जिहड़ा आ 1 है ये तुहाडा अगे आ जाना, जिहड़ा बच गया 4 रिमाइंडर आया जिहड़ा तुहाडे कोल बचिया बेटा उन्हें की बन जाना है, अंश बन जाना है, तो हर ने हर ही रहना है। अंश किन्ने बनना है, जिहड़ा तुहाडे कोल नंबर बचेगा, जिहड़ा नंबर बच जाएगा वो की बन जाएगा तुहाडा अंश, तो जिहड़ा नंबर तुहानूं कोई सॉल्व करके आएगा वो अगे आ जाना, ठीक है। ये तुहाडा की हो गया आंसर मिश्रित भिन्न च। हुण तुहानूं पता लग गया मिश्रित भिन्न दिता होवे ते आपां उचित भिन्न या विषम भिन्न च किवें आंसर बनाउणा है, जे विषम भिन्न दिता हो तो आपां मिश्रित भिन्न च आंसर किवें बनाउणा है, ठीक है। नैक्सट देखो बेटा अगे गया न्यूनतम रूप। न्यूनतम रूप की हुंदा है सब तो छोटा रूप, ठीक है। पंजाबी च भी कहांगे न्यूनतम रूप, न्यूनतम रूप का मतलब सब तो छोटा रूप। न्यूनतम रूप च बेटा देखो आप की करना है, जिवें इन्होंने सानूं दिता है 6 बटा 4, वो पूछणगे कि न्यूनतम रूप च हैगा या नहीं गा। न्यूनतम रूप मतलब कि सब तो छोटा रूप जिस तो बाद अगे उसकी कोई कटिंग किसी टेबल पर ना हुंदी होवे, ठीक है। जिवें हुण इन्होंने की लिता सी बेटा 6 बटा 4, 6 बटा 4, 6 ते 4 की कटिंग आपां वो वाले टेबल पर देखनी है, इहो जिहा कोई टेबल देखना है जिहदे ते 6 भी आंदा होवे ते 4 भी आंदा होवे। 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया हुण 3 बटा 2। 3 बटा 2 तो बाद कोई इहो जिहा नंबर हैगा जिहड़ा 3 ते भी जांदा होवे ते 2 ते भी जांदा होवे, मतलब कि 3 ते 2 दोवें इक्को टेबल ते जांदे होण, नहीं, ये सब तो छोटा रूप आ गया, इस तो अगे दी कटिंग नहीं हो सकती। ये साडे को की आ गया बेटा न्यूनतम रूप। जे ते तुहाडे को कटिंग नहीं हुंदी पई, सिर्फ इदां ही आंदा है, जिवें हुण बटा पुछणगे वो 4 बटा 5 न्यूनतम रूप ही है पहली, ठीक है, वो तुसीं लिख देना कि न्यूनतम रूप ही है। बट जे उन्होंने कोई इदां दी रकम दित्ती होगी जिहदी कटिंग करनी होवे हुंदी होवे अगे, तो उन्होंने आपां न्यूनतम रूप च लिखांगे, ठीक है बेटा। यह गल ध्यान च रखना जो तुसी कटिंग करनी है, ऐ ना होवे उपर वाले टेबल की उपर वाले नंबर की कटिंग तुसी
3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਊਨਤਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾइज नहीं कटिंग करनी। ठीक है, दोवें नंबर उपर वाला नंबर 6 थले वाला नंबर 4 इक्को टेबल ते जाने चाहिए। ये नहीं कि उपर वाले 3 ते घालता था थले वाले 2 ते घालता, इदा नहीं करना, गलत हो जाएगा बेटा आंसर साडा। हुण नैक्सट देखो, भिन्नों को जमा करना जां भिन्नां नूं जमा करना। जमा करांगे तो किवें गा, 2 रूल हैगे ने, 2 तरह के भिन्न आ सकते हैं साडे कोल। देखो किवें करना इन्हां नूं। 6/4 जमा 4/4। देखो ਇਹ वाली जी इदा भिन्न आ जान कि ये थले भी सेम लिखा हो तो ये थले भी सेम लिखा हो। इनू जमा करन दा बहुत ईजी मैथड है। किवें करांगे आपां, इहदे ओवर च 4 लिख लिया, उपर वाले दोवें नंबर एज इट इज़ 6 जमा 4 लिख देने, कुछ नहीं करना। थले सारे दे थले बटा पा लेना है तो उपर 6/4 6 जमा 4 सॉरी लिख लेना है। 6 च 4 जमा करांगे तो कितना आएगा 10 तो बटे च 4, 10/4 आ गया। ठीक है, ये पता लग गया। बट जेकर देखो बेटा कि एक दे थले 3 आ जाए, एक बटे थले 5 आ जाए, मतलब कि अलग अलग आ जाए, फिर आप किवें सॉल्व करना है। 2 मैथड है ने, मैं दोवें मैथड समझा दूँगी। जिहड़ा तुहानूं बेटा ईजी लगेगा तुसीं वो मैथड नाल सम सॉल्व कर सकते हो। 3 ते 5 का बेटा की आपां कड्डांगे एलसीएम, लघुत्तम समावर्त कड्डांगे। उस तो बाद आपां की करांगे, आपां इहदा 5 3 15 आ गया, 5 1 5, 3 एज इट इज़ आ गया, 3 1 3, 5 नूं 3 नाल गुणा कीते की आ गया 15। इहदा कितना आ गया लघुत्तम समावर्तक 15। हुण बेटा देखो ये 2/3 सी, 2/3 के ओवर च मैं स्टैप दोबारा कर देनी है। 2/3 मल्टीप्लाई, ये मैं इत्थे खाली छड्डता ते ओवर च मैं लिखता 15। हुण 3 नूं किहड़े नंबर नाल मल्टीप्लाई करावांगे बेटा कि साडे कोल इत्थे 15 आ जाए। किहड़ा नंबर होएगा 5, फिर उपर भी 5 नाल गुणा करवाउणा पेगा। जे थल्ले 5 नाल गुणा करवाया उपर भी 5 नाल गुणा कराओ। 2 5 10, 2 5 10, 3 5 15। ठीक है, हुण इदां ही ए वाला नंबर लवो 5/5। हुण इहदे थल्ले ओवर ही ना एलसीएम 15 आया साडे कोल, 15 लिख लिया। जिवें 5/5 सी मल्टीप्लाई, इत्थे साडे कोल 15 आउंदे आ। 5 नूं किहड़े नंबर नाल गुणा कराइए कि 15 आएगा 3 नाल। जे थल्ले 3 नाल गुणा कराया उपर भी 3 नाल गुणा करावांगे, ये आ गया 15/15। हुण इत्थे क्या आ गया 10/15 जमा ਇਹ वाले नंबर दी की आ गया साढ़े को 15/15। हुण दोवें सेम हो गए। सेम होने तो बाद एज इट इज़ लिखता तो उपर वाले नंबर उदा दे उदा प्लस करते। 10 जमा 15 कितना आ गया 25/15। ये तुहाडा की हो गया बेटा आंसर। ठीक है, हुण दूसरा मैथड किहड़ा है देखो ध्यान नाल, यही सब नूं मैं दूसरे मैथड नाल भी करके दसदी हां। 2/3 जमा 5/5, जिहड़ा एलसीएम वाला लघुत्तम समावर्तक हो तो एज इट इज़ करना है। उस तो बाद 15 3 दे टेबल ते देखना बेटा कि 15 किन्ने ते आंदा। 3 दे टेबल ते 15 देखांगे किन्ने ते आंदा 5 ते। जिहड़ा आंसर आएगा बेटा, जिहड़ा भी आंसर आएगा 5 आया ना आंसर, इनू आपां जिहड़ा उपर वाला नंबर है 2 उन्ना की करवा देनी गुणा। ठीक है, उन्ना की करवा देनी बेटा गुणा। फिर ये जमा का साइन, 5 नूं 15 नाल हुण डिवाइड करवाओगे। 5 नूं 15 नाल डिवाइड करा की आएगा साडे कोल 3। 3 नूं जिहड़ा उपर नंबर लिखा होया 5 उन्ना की करवा देनी गुणा। 2 5 10, 5 3 15, 10 जमा 15 किन्ने हो गए बेटा 25/15। ये साडा की हो गया आंसर। देखो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तुसीं इदां भी कर सकते हो तो उदां भी कर सकते हो। ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, ये शॉर्टकट मैथड है। बट जे तुहानूं बेटा ए वाला समझ आता ए वाला कर लेना फर्स्ट वाला, जे सैकेंड वाला मैथड तुहानूं ईजी लगता है वो कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि जरूरी यही मैथड करना है या जरूरी यही मैथड करना है। ठीक है बेटा।